آپ کو اہم خبر دیں، وزیر اعظم نے قومی ٹیم کو بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کی اجازت دے دی ہے۔ بڑی اور اہم خبر، وزیر اعظم نے قومی ٹیم کو بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کی اجازت دے دی ہے۔ اہم فیصلہ ہو گیا ہے جس کا انتظار تھا۔ وزیر اعظم نے قومی ٹیم کو بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کی اجازت دے دی ہے۔ چیئرمین پی سی بی کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان جو بھی کہیں گے اسی پر عمل کیا جائے گا، اور اب وزیر اعظم پاکستان نے قومی ٹیم کو بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کی اجازت دے دی ہے۔ محسن نقوی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ بنگلہ دیش نے بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کی درخواست کی ہے، ہم نے اپنے لیے نہیں بنگلہ دیش کے لیے سٹینڈ لیا تھا۔ چیئرمین پی سی بی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، ہم ہر وقت اچھی خبر کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پاکستان کے موقف کی جیت ہوئی ہے اور وزیر اعظم پاکستان نے قومی ٹیم کو بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کی اجازت دے دی ہے۔ پاکستان کی جانب سے بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے ساتھ اور بنگلہ دیش کے ساتھ یکجہتی کی گئی تھی، اور پاکستان نے 15 فروری کو بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کے بعد آئی سی سی نے گھٹنے ٹیکے اور پاکستان کی منت سماجت کی، اور آئی سی سی کے ڈیپٹی چیئرمین عمران خواجہ پاکستان آئے، اور اس کے بعد منت سماجت کے بعد آخرکار پاکستان مان گیا، اور پاکستان نے جب بنگلہ دیش اور سری لنکن بورڈ کی جانب سے یہ درخواست کی گئی کہ پاکستان بھارت کے خلاف میچ میں شرکت کرے، تو پاکستان نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے قومی ٹیم کو 15 فروری کو بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کی اجازت دے دی ہے۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے یہ بڑی خبر ہے، کرکٹ کے شائقین کے لیے بڑی خبر ہے۔ دونوں حریف ہیں، بڑا میچ ہوتا ہے۔ براڈ کاسٹرز کی جانب سے آئی سی سی کے اوپر یہ پریشر تھا اور یہ دباؤ تھا کہ اگر یہ میچ نہیں ہوگا تو آئی سی سی کو مالی طور پر بہت نقصان ہوگا، براڈ کاسٹرز کو بہت نقصان ہوگا مالی طور پر، جس کی وجہ سے آئی سی سی یہ کوششیں کر رہا تھا اس دن سے ہی، جس دن سے پاکستان نے بنگلہ دیش کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے اس میچ کا بائیکاٹ کیا تھا کہ پاکستان کو کسی طرح منایا جائے۔ پاکستان کی منت سماجت کی گئی اور بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کرتا رہا، لیکن پاکستان اپنے موقف کے اوپر ڈٹا رہا، اور پاکستان نے کہا کہ وقت بتائے گا کہ کون گھٹنے ٹیکتا ہے اور کون ایک کے گھر جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہوا جب آئی سی سی پاکستان آیا، اور آئی سی سی نے کوشش کی کہ پاکستان یہ میچ کھیلے، اور اب وزیر اعظم پاکستان نے قومی ٹیم کو بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کی اجازت دے دی ہے۔ پاکستان 15 فروری کو بھارت کے خلاف میچ کھیلے گا۔ پاکستان نے بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کی درخواست پر تفصیلی غور کیا۔ اعلامیے کے مطابق یو اے ای اور سری لنکا سے ہونے والی بات چیت پر بھی غور کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے قومی ٹیم کو بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کی اجازت دے دی ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ اعلان سامنے آ گیا ہے، پاکستان 15 فروری کو بھارت کے خلاف میچ کھیلے گا۔ بڑی اور اہم خبر سامنے آ رہی ہے۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان نے بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کی درخواست پر تفصیلی غور کیا۔ یو اے ای اور سری لنکا سے ہونے والی بات چیت پر بھی غور کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے دوست ممالک کی درخواست کے پیش نظر اجازت دی ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے، فیصلہ کھیل کے جذبے کے تحفظ کے لیے کیا گیا، فیصلہ عالمی سطح پر کرکٹ کے تسلسل کے لیے کیا گیا ہے، ایسا بتایا گیا ہے پاکستانی حکومت کی جانب سے۔ پاکستان 15 فروری کو بھارت کے خلاف میچ کھیلے گا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں توصیف احمد، سابق ٹیسٹ کرکٹر۔ توصیف صاحب شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے۔ توصیف صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں پاکستانی حکومت کا یہ فیصلہ؟ یہاں بڑی خوشائن بات ہے، اور ایکسپیکٹڈ تھا، اور کل سے جو ہلچل مچی ہوئی تھی اور اتنے دور دور سے لوگ اڑ کے آ رہے تھے، تو سب وہی کہ بھیجا جا رہا تھا ان کو کہ بھائی خدا کے واسطے کچھ کرو جا کے آپ۔ پاکستان نے کبھی بھی جو ہے کھیل میں سیاست لانے کی کوشش نہیں کی۔ ہم بار بار وہ دہرائیں گے، ہماری کنٹری نے جو آج فیصلہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اتنے کچھ ہونے کے بعد جو ہے ہمارے دل کھلے ہیں ابھی بھی، اور ہمیشہ سے ہم کھل کے جو ہے ان سے ملتے رہے ہیں اور کہتے بھی رہے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ بیک فٹ پہ چلے جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے۔ اور میرا خیال آج جب بیک فٹ پہ گئے تو محسن نقوی صاحب نے بانسر کیا، تو وہ بیک فٹ پہ جب گئے ہیں تو وہ ہیڈ وکٹ ہو گئے، بہت قریب تھے وکٹ کے۔ تو آئی تھنک پاکستان کا زبردست فیصلہ ہے، اور میرے نزدیک ہمیں یہی امید تھی، اور ہمیشہ ہم جو ہے، اور تھینکس، سیدھی بات ہے کہ بنگلہ دیش، اور پھر ہم کسی کے
अपने लिए पहले नहीं लड़े, हम लड़े बांग्लादेश के लिए पहले कि भाई उनके साथ ज्यादती हो रही थी। तो मेरा ख्याल है दूसरों को भी सोचना चाहिए कि भाई किसी के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो बोलना चाहिए खड़े होकर। और इसी तरह श्रीलंका, यकीनी तौर पर श्रीलंका जो था ऐसे टाइम में हमारे पास आया जब हालात बड़े खराब हो गए थे, और आपको पता ही है उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया, आन के खेले भी, वो सारा कुछ हुआ। तो आई थिंक मिला जुला सबका है, और रिक्वेस्ट अपनी जगह है, बट जो टर्म कंडीशन पाकिस्तान को मनवानी थी, आई थिंक वो अभी तफसील आ जाएगी सारी, और ये एक बड़ा फैसला है, पाकिस्तान का बड़ा दिल है जी। तो सिर साहब, ये कहा गया है कि फैसला आलमी सतह पर क्रिकेट के तसलसल के लिए किया गया है। बिल्कुल, हमने कभी भी ये नहीं सोचा ना कि हम जो है खेल में कोई पॉलिटिक्स लाएंगे, यही पॉलिटिक्स करते रहे। और आज जब पैसों की मार पड़ने की वक्त आई, और पहले भी यही था कि ये न्यूट्रल वेन्यू ये और वो सब जाने के जी, अब हाइब्रिड उस पर जाएंगे हम, ये सब करते रहे, हम फिर भी मानते रहे, सारा कुछ हुआ। लेकिन वो पहाड़ के नीचे जब आता है ना तो फिर वो इसी तरह होता है, वो मुहावरा है। और बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे सबको हमने दूसरी चीजों में भी बनवाया, जो आज हमारे पास लोग आ रहे हैं, वो उसका जिक्र करना लाजिम होगा। और उसमें गोस टू पीसीबी और नकवी साहब के, उन्होंने बढ़ चढ़ के, वरना इतनी हिम्मत ये लोग भी दिखा देते अगर कंट्रीज दूसरी, तो एक दूसरा वो होता। लेकिन हम दूसरों के लिए लड़े हैं पहले, बाद में अपनी चीजें मनवा रहे हैं। बिल्कुल, दूसरों के लिए लड़े हैं, बाद में अपनी चीजें मनवाई हैं। साथ ही रहिएगा तौसीर साहब, स्पोर्ट्स रिपोर्टर कादिर ख्वाजा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कादिर, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आई हैं इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो है वो सालसी का किरदार अदा कर रहा था बांग्लादेश और आईसीसी के दरमियान। इस हवाले से जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह और आईसीसी का जो नायब चेयरमैन आए थे गुज़श्ता रोज, वो मीटिंग हुई। उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के तमाम मुतालबात माने गए, और पाकिस्तान ने ये दो टोक अल्फाज में कहा था कि जब तक बांग्लादेश के हकूक उनको पूरे तरीके से नहीं दिए जाते, पाकिस्तान भी 15 फरवरी का जो मैच है जिसका भारी नुकसान आईसीसी को और ब्रॉडकास्टर्स को बर्दाश्त करना था, उस वजह से आईसीसी ने घुटने टेके पाकिस्तान के आगे, बांग्लादेश के आगे, और बांग्लादेश को 2028 से 2031 तक यकीन दहानी करवाई गई कि उसमें आईसीसी का इवेंट दिया जाएगा। उस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिर्फ और सिर्फ इजहार यकजहती जो है वो की जा रही थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ कि उनको जो है वो टूर्नामेंट से आउट किया गया, जिसपे जो है वो अब आईसीसी ने बाकायदा तौर पर एलामिया भी जारी किया है कि किसी किस्म की कोई पाबंदी बांग्लादेश क्रिकेट टीम पर नहीं लगाई जाएगी, और उनको उसी तरह हकूक दिए जाएंगे जिस तरह बाकी तमाम बोर्ड टीम मेंबरान को दिए जाते हैं। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान जो है, जिसका बाइकआउट किया गया था बांग्लादेश से यकजहती के लिए, पाकिस्तान टीम अब जो है वो 15 फरवरी को भारत के खिलाफ कोलंबो में मैदान में उतरेगी, और उनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। ये बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान की जीत हुई है। पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के दरमियान। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पीसीबी को दी गई बाज़ाब्ता दरखास्तों के साथ साथ श्रीलंका, मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर रुकन ममालिक से बातचीत का जायजा लिया, जबकि खतो खताबत में पाकिस्तान की ज़ेरे क़यादत हालिया चैलेंजेस का काबिल अमल हल तलाश करने की कोशिश भी की गई है। और हुकूमत पाकिस्तान बीसीबी के सदर अमीनुल इस्लाम के बयान का भी खैर मकदम करती है, जबकि बरादर मुल्क जो है वज़ीर आज़म हाउस से ये जारी किया गया है कि बांग्लादेश की तरफ से इजहार तशक्कुर का बड़ी गर्मजोशी के साथ खैर मकदम करते हैं, और पाकिस्तान इस बात का आदा करता है कि वो बांग्लादेश के साथ शाना बशाना खड़ा है। और इस हवाले से ये फैसला क्रिकेट की तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात और इस आलमी खेल के तसलसल की हमायत और इसमें शरीक तमाम ममालिक की खातिर लिया गया, जबकि वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम मैन इन ग्रीन के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, और हमें यकीन है कि हमारी टीम खेल के जज्बे और कौमी फखर से आलमी सतह पर कौमी शान के लिए मैदान में उतरेगी। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने बेस्ट विशेस का इजहार किया है पाकिस्तान टीम को कि पाकिस्तान टीम जो 15 फरवरी को मैच खेलने जा रही है रवायती खिलाफ भारत के खिलाफ, उसमें जो है वो नई ख्वाहिशात का इजहार वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से खास तौर पर कहा गया था, और हुकूमत पाकिस्तान ने ही ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान 15 फरवरी को होने वाला जो भारत के खिलाफ मैच है उसका बाइकआउट करे, क्योंकि बांग्लादेश टीम को इस वर्ल्ड कप से आउट किया गया और स्कॉटलैंड की टीम को शामिल किया गया। उस हवाले से इजहार यकजहती और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक मुकाम दिलवाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की हुकूमत ने यह बेहतरीन कदम उठाया था, जिस पर आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स परेशान हो चुके थे, क्योंकि अरबों रुपए का उनको नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा था। पाकिस्तान और भारत का जो मैच था वो उसकी गेट मनी के मद में भी और उसके कमर्शियल राइट्स के मद में भी तमाम तर जो नुकसान थे वो आईसीसी को बर्दाश्त करना पड़े थे। आईसीसी के जो
जो सरबराह हैं जे शाह, उन्होंने घुटने टेके और इमरान ख्वाजा को अपना जो है वो तर्जुमान बनाकर यहाँ पर भेजा, जिन्होंने यहाँ पर तमाम तर जो गुज़श्ता रोज चीजें थी वो हैंडल की। उसके बाद जाके आईसीसी के तमाम ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने ब्रीफ की और आईसीसी ने आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को तमाम तर चीजों से आगाह किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा किया, मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया, हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमारे मुश्किल वक्त में साथ दिया और पाकिस्तान शाना बशाना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ खड़ा। बिल्कुल साथ ही रहिएगा। हमें स्पोर्ट्स एंकर पर्सन सवेरा पाशा साहिबा ज्वाइन कर चुकी है। सवेरा साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सवेरा साहिबा किस तरह देखती हैं आप, पाकिस्तान और भारत का 15 फरवरी को मैच होगा, वज़ीर आज़म ने इजाजत दे दी है? बिल्कुल जी, बिल्कुल इजाजत मिल गई उसकी, और जो आज शाम से खबर रोटेट हुई थी उसमें आ गई थी ये खबर कि इजाजत जो है वो मिल जाएगी। एंड अब ऑफिशियली आईसीसी की तरफ से जिस तरह अनाउंसमेंट हुई है, देखें इस पूरे एपिसोड से ये पता चलता है कि जब कोई चीज गलत होती है और आप जब उसके लिए आवाज उठाते हैं और आप जब हक सच के साथ होते हैं, अगर आप हक बात कर रहे होते हैं तो इवेंचुअली जीत आपकी होती है, और जीत हुई। यहाँ पे आपको बांग्लादेश को आपने जो जो रिस्पेक्ट दिलवानी थी वो रिस्पेक्ट भी दी गई, जिस तरह प्रेस रिलीज आई आईसीसी की, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगे अपनी डिस्कशंस भी की हैं उन पे भी गौर किया जाएगा। जो डिस्कशंस अब तक हमारे सामने अनफोल्ड नहीं हुई है मगर बैकडोर्स में जरूर उनकी डिस्कशन हुई है। अच्छा सवेरा साहब, किस तरह देखती हैं आप, जिस तरह भारत प्रोपेगेंडा कर रहा था वही जिस तरह उसकी पुरानी एक आदत है, और उसके बाद जब ये पाकिस्तान आए डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा और तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात हुई और बांग्लादेशी बोर्ड के सरबराह भी यहाँ पर मौजूद थे, तो आप समझती हैं कि तमाम तर वो शराइत जो थी वो मनवा ली गई होंगी जो पाकिस्तान और बांग्लादेश चाहते थे? देखिए तमाम तर शराइत, क्योंकि तमाम तर शराइत जो है वो पिन पॉइंट करके सारी कोई बता नहीं सकता, मगर जाहिर सी बात है बहुत सी शराइत मानी गई होंगी जिसकी वजह से फिर मोहसिन नकवी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कन्विंस किया होगा कि आप अपना ये डिसीजन अब वापस ले लीजिए और हम खेल सकते हैं, क्योंकि जो सारी गलतियां आईसीसी के एंड पर हो रही थी वो आईसीसी ने रियलाइज, और जिस तरह फिर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपने लॉसेस के बारे में बताया, अपने लॉसेस के बारे में डिस्कस किया, और जब जब मुश्किल वक्त आया तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड हमारे साथ खड़ा हुआ। तो ये एक अच्छा ये स्टेप था कि हमने बांग्लादेश को भी अकेला नहीं छोड़ा और हमने अपने दूसरे जो के हमारे एक और दूसरी नेशन है उसको भी हमने अकेला नहीं छोड़ा, और दोनों का ख्याल रखते हुए हम वापस इस गेम में आ गए। साथ ही रहिएगा। सवेरा पाशा साहिबा हमारे साथ तौसीफ साहब भी मौजूद। तौसीफ साहब, आप किस तरह देखते हैं कि आईसीसी को आखिरकार पाकिस्तान के पास आना पड़ा और पाकिस्तान को मनवाना पड़ा और मिन्नत समाजत करना पड़ी? कितनी बड़ी जीत है पाकिस्तान की? जीत तो इतनी बड़ी है कि कोई सोच भी नहीं सकता, और मेरा ख्याल है कि जाहिर है भारत तो बिल्कुल ही नहीं सोच सकता, क्योंकि इससे पहले जो वो हथकंडे इस्तेमाल करते थे वो करते रहते थे और सारे लोग खामोश रहते थे। आई थिंक उनको एक अब बहुत ही तगड़ा आदमी मिला है और वो ये सोच भी नहीं सकते थे, जबकि देखिए हम गलत चीजों पे नहीं हुए, सॉरी इसलिए कि एक मुल्क के साथ कोई भी होता, अगर मैं इंडिया की मिसाल ले लूं कि इंडिया अगर कहीं पे जाता और उसको इस तरह की बातें मिलती खेलने को, हमारे पास आता या श्रीलंका जाता या यानी किसी कंट्री में कि आओ जरा हम तुम्हें आओ यहाँ तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें वो कर देंगे, मतलब इस किस्म की के आदमी सोच नहीं सकता, तो क्या वो जाते? नहीं जाते। तो हमने उनका जो है वो लड़ा है हमने, और अदालत में गए हैं ऑनेस्टली, और अदालत में ऐसे हम गए हैं कि हमने तमाम कंट्रीज को बताया, लेकिन फिर भी वो बैकफुट पे चले गए सारी कंट्रीज। बट आई थिंक हम अपनी जगह अड़े रहे, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, हम तो किसी और के लिए लड़ रहे थे। हमारा तो किस्सा साफ था कि हाँ, लेकिन हाँ जो पॉइंट्स हमारे पास थे वो डेफिनेटली ये थे कि इन्होंने वापस आना है हमारे पास, इसलिए आना है कि इनका इतना पैसा इन्वॉल्व हुआ है, इनके ब्रॉडकास्टर, इनके स्पॉन्सर, वो सब लगे हुए हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है सबसे बड़ी चीज यही हो कि उनके स्पॉन्सर और ब्रॉडकास्टर ने जो है वो इनको तबीयत साफ कर दी है इनकी, और फिर ऐसी हरकतें करनी ही नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा है, और पाकिस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया में जो है खेल के लिहाज से
आसमान पे चला गया है, मैं समझता हूँ। और ये क्रेडिट गोज टू नकवी साहब, सीधी सीधी बात है। और किसी जगह पे भी हम नीचे हम नहीं देखा हमने, और चढ़ के इनसे बात की है। और सोचना चाहिए ना वही कि भाई अब ये चीजें नहीं चलेंगी। और मेरा ख्याल है उन कंट्रीज को और सोचना चाहिए कि यार कब तक आप किसी के जुल्म को बर्दाश्त करते रहोगे। ये जुल्म ही था ना कि आप किसी को जब चाहे इधर से उधर कर दो, इधर से उधर कर दो। नहीं, जरा सा मामला ठीक हो सकता था। इन्होंने तो एकदम ही उठा के दूसरी टीम अंदर लाके डाल दी। अरे भाई, इधर से उठा के एक उधर डाल देते आपकी, कुछ भी नहीं था, सीधा सीधा काम था। और कोई ऐसी मुश्किलात भी नहीं थी, मगर वो अपने जोम में थे। और उन्होंने कहा नहीं जी, जैसे हम दूसरों को पहले जमीन चटाते रहे तो आपके हमने चटा दी उनको जमीन। और देखिए आप बिल्कुल खुद भी आ जाते हैं सही, बिल्कुल सही पॉइंट आपने उठाया है तौसीफ साहब। सवेरा साहब, आप किस तरह देखती हैं कि बांग्लादेश का मौकिफ भी तस्लीम किया गया है कि बांग्लादेश के ऊपर कोई कर्दगन, कोई जुर्माना नहीं होगा और कोई माली और इंतजामी पाबंदी नहीं होगी, और 2031 से पहले पहले बांग्लादेश किसी ना किसी आईसीसी के इवेंट को मेजबानी करेगा? आप ये देखें कि इससे पूरा जो एपिसोड हुआ है और जो मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह इस पूरे केस को और इस पूरे एपिसोड को लेकर चले हैं, आप इससे सिर्फ ये देखिए कि हम सिर्फ अपने फायदे और अपने उसके लिए नहीं खड़े हुए, हम सच बात के लिए खड़े हुए। और हमने बांग्लादेश के लिए क्या क्या चीजें बेहतर करवा दी, क्या क्या चीजें अप्रूव करवा ली कि एक आईसीसी इवेंट बांग्लादेश को इस पूरी सिनेरियो में मिल गया। एक वो बांग्लादेश बोर्ड जिसको आईसीसी ने ये चुटकियों में कह दिया था कि ठीक है जी, आप वर्ल्ड कप से बाहर निकल जाएं, हम स्कॉटलैंड को बुला लेंगे अगर आपने नहीं आना भारत। और अब वही ये लिखता है कि हम कोई सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, अगर वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जाना चाहते हैं तो वो वहां पे भी जा सकते हैं, हमारे खिलाफ मतलब अपना केस लड़ने तो जा सकते हैं। एंड देन सबसे बड़ी बात कि आईसीसी इवेंट करवाने की कमिटमेंट के 2031 से पहले पहले जो है एक ना एक आईसीसी इवेंट बांग्लादेश को मिलेगा। सो इस वक्त अगर ये देखा जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े भाइयों की तरह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जो है वो प्रोटेक्ट किया, सपोर्ट किया। अच्छा सवेरा साहब, किस तरह देखती हैं पाकिस्तान का जो ये स्टांस पाकिस्तान ने लिया था, जो मौकिफ पाकिस्तान ने अपनाया था, उसका मुस्तकबिल के ऊपर क्या असरात होंगे और कितना ये हमें फायदा देगा? बहुत फायदा देगा। देखिए, ये सिर्फ हमें फायदा नहीं देगा, ये पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड को फायदा देगा। वो क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड हो गया, ये वो क्रिकेट बोर्ड्स हैं जिनको हम बड़ा मानते हैं। ये कभी भी किसी गलत बात पे नहीं खड़े हुए। अगर किसी ने अपनी बीसीसीआई अगर अपनी मोनोपोली चलाता है तो बीसीसीआई, क्योंकि जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा फाइनेंसेस लेकर आता है, मगर आप एक हद तक किसी को बुली करने दे सकते हैं। एक हद के बाद अगर आप किसी को बुली करने दे रहे हैं या आप खुद बुली हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप खुद कसूरवार हैं कि आप बुली क्यों हो रहे हैं। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को सबसे इंपॉर्टेंट, उनको ये बात समझनी चाहिए कि जब कुछ गलत हो तो उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मोहसिन नकवी साहब ने ये सारी क्रिकेटिंग वर्ल्ड, सारी दुनिया को दिखाया कि हर गलत बात के ऊपर अगर आप खड़े होंगे तो इवेंचुअली जीत आपकी होगी। अच्छा सवेरा साहब, क्या इस फैसले से पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक स्पोर्ट्समैन स्टेट के तौर पर फायदा होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल फायदा होगा। वो इस वजह से बिकॉज इस पूरे सिनेरियो से जितने वो लोग कहते थे कि ये क्या पाकिस्तान की टीम तो ऐसा खेलती, तो पाकिस्तान इंडिया का क्या कॉन्टेस्ट है, अब तो नई राइवलरी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की है और पाकिस्तान इंडिया की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है। इस पूरे सिनेरियो से आज उन सबकी राय तब्दील हो गई है। जितनी देर पाकिस्तान नहीं 15 फरवरी को जो है वो मैदान पे उतर रहा था, उतनी देर तक सब लिटरली इसी बात, एवरी अदर जर्नलिस्ट ऑफ एवरी अदर कंट्री वाज कंसर्न्ड कि क्या होगा ये मैच कि नहीं होगा। सो अगर आप स्पोर्टिंग सुपीरियरिटी से बात करें तो हमने अपनी अहमियत जता दी, बता दी, दिखा दी और दुनिया को समझा दिया कि हम कोई गए गुजरे नहीं है, हमारी बहुत अहमियत है। अच्छा सवेरा साहिबा, इस फैसले के आने के बाद आप पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों के मोराल को किस तरह देखती हैं? देखिए, मोराल तो मैं कहती हूँ, हमारी जो टीम है ना, पाकिस्तानी टीम पे इतनी चीजें गुजर गई हैं कि अब मुझे लगता है कि वो तैयार होते हैं
کہ اچھا جی کھیلیں گے تو کھیل لیں گے, نہیں کھیلیں گے تو نہیں کھیلیں گے. مگر اب اس میچ میں اگر پہلے 100% ہائپ ہوتی تھی, اب اس میچ کی 200% ہائپ ہو گئی ہے, جو کہ مجھے کبھی کبھار لگتا ہے کہ بڑی زیادتی ہے ہمارے کھلاڑیوں کے ساتھ, کہ وہ فرام دا ورڈ گو, وہ پریشر تو پہلے ہی ہوتا ہے انڈیا کے خلاف کھیلنے کا, وہ ڈبل پریشر ہو جاتا ہے کہ اتنا لڑ مڑ کے آپ کھیل رہے ہیں, اور اس کے بعد اگر آپ کی کارکردگی بہتر نہیں ہوئی تو پھر اتنی باتیں ہوں گی کہ اچھا جی کھیلتے ہی نہ اس سے بہتر, اور کھیل لیا اس سے بہتر ہم کھیلتے نہ, خدا نہ خواستہ. بٹ آئی ہوپ اینڈ آئی بلیو کہ اس دفعہ ٹرن اراؤنڈ ہو اور ہمارے لڑکوں کا وہی جوش و جذبہ ہو. کیونکہ دیکھیں محسن نقوی صاحب نے نا, جس طرح وہ کہتے ہیں نا, جس آرگنائزیشن کا جو باس ہوتا ہے وہ پورا ہیڈ کرتا ہے اپنی آرگنائزیشن کا, تو محسن نقوی نے تو شیر کی طرح لڑ کے دکھا دیا. اب شیروں کی طرح لڑنا ہے ہمارے لڑکوں کو فیلڈ میں, اور وہی کام کر کے دکھانا ہے جیسے محسن نقوی نے سب کو بیک فٹ پہ کیا. بالکل سمیرا ساتھ ہی رہیے گا, توصیف صاحب بھی ساتھ ہیں. توصیف صاحب آپ کہیے گا, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ فیصلہ پاکستانی سپورٹس ڈپلومیسی کو مضبوط کرتا ہے؟ بہت زیادہ کانکریٹ کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی سیسا پلائی دیوار بنا دیا ہے کہ میرا خیال ہے سارے لوگ جو ہیں اس وقت ویسے بھی مانے گئے کہ ہمیں تو بار بار ایک کنٹری کے پرائم منسٹر بتاتے رہے ہیں کہ بھائی 5 مارے 6 مارے, ہمیں تو یاد بھی اب نہیں, لیکن ہم نے وہ چیز کر کے دکھائی ہے کھیل میں بھی. ٹھیک ہے, وہ جو ابھی جو بات ہو رہی تھی سویرا جو بات کر رہی تھی, بالکل اب سارا کام جو ہے یہ ہماری ٹیم کا ہے. انڈر پریشر انڈیا ہے اس وقت, ڈیفینیٹلی انڈر پریشر, اس لیے کہ انہوں نے جو حرکتیں گراؤنڈوں میں کی تھیں وہ بھی انہیں یاد ہوں گی. اب ہمارے پلیئروں کو چاہیے کہ ایک ہی چیز رہتی ہے کہ آپ انہیں اپنے کھیل سے جو ہے مات دیں, کیونکہ سارے باکسز تو ہم نے ٹک کر دیے ہیں اور باہر کے سارے باکسز, لیکن اب کھیل میں آپ نے جو ہے لڑنا ہے اور ایسا کر کے دکھانا ہے جس سے کہ پتہ چلے ہمیں کہ ہاں جی ہمارا جو سارا ذہن ہے وہ ہمیں کھیل کے اوپر ہی ہے, ہم کسی پالیٹکس میں نہیں پڑتے, کسی چیز میں نہیں پڑتے. اور اس کے لیے آپ کو اچھے ڈیسیژن لینے پڑیں گے. اچھے ڈیسیژن ایسے ہوں گے کہ آپ کے ٹیم کے جو آفیشلز ہیں یہ ہیں پراپر ٹیم کو دیکھیں, اور اس کی 11 کی ٹیم جو آپ بنائیں, کوئی انڈر پریشر آنے کی ضرورت نہیں ہے. میں 100% کہہ رہا ہوں کہ یہ خود انڈر پریشر ہیں اس وقت, اس لیے کہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہم بہت نیچے چلیں. ان کے پلیئروں کے ذہنوں میں بھی بہت کچھ ڈال دیا تھا نا انہوں نے, تو وہ اب ان کے دماغ میں گھوم رہا ہوگا کہ یار ہم نے فلاں کے ساتھ ایسا کچھ کیا ہے, تو اب سامنے آئیں گے تو ہم کیا کریں گے. تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ریئیکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, سیدھا جا کے میچ کھیلیں, اپنی جو بنائی ہوئی پوری اسٹرینتھ ہے اور جو پلان ہے اس کو ٹک کریں سب, اور میرا خیال ہے یہی ہماری کامیابی ہوگی. اگر آپ نے یہ میچ, اور جو مجھے قوی امید ہے آنیسٹلی, کہ مجھے کافی دل سے امید ہے کہ اس فارمیٹ میں آپ ان کو مار دیں گے, اور آپ نے جس دن اس میں مار دیا تو سمجھ لیجیے سارا کچھ جو ہے ہمارے فیور میں چیزیں آ جائیں گی. ویسے ہی آ گئی ہیں, اور کوئی بات نہیں, کھیل میں ہار جیت ہوتی ہے کوئی نہیں, لیکن جب تک کھیلیں گے نہیں ہم تو ان کو کیسے ہرائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ کرکٹ ٹیم پہ اب پلیئروں پہ ذمہ داری آتی ہے, اور جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آفیشلز ہیں, مینیجر ہیں, یہ سب اس طرح کی بیٹھ کے میٹنگ کریں جس سے انڈر پریشر بھی نہ ہو وہ لوگ, اور یہ بھی بتائیں کہ بھائی آپ کا سارا فوکس یہاں پر ہے, کیونکہ یہ جو ٹورنامنٹ ہے, جو ایونٹ ہے, یہ ہے انڈیا پاکستان کا, اور پاکستان باہر جا رہا تھا تو یہ حال ہو گیا. کیونکہ باقی ٹیمیں ہیں ضرور اپنی جگہ, لیکن آپ دیکھ لیں کہ اتنا گرم جوشی ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. اور آج کے بعد سے تو ایسی گرم جوشی ہوگی کہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ کیا ہیڈنگز لگیں گی دنیا کی ٹی ویوں پہ اور اس پہ کہ بھائی یہ کیا. اور پھر ظاہر ہے ریلیکسیشن ملی ہے انڈیا کو کہ وہ بچا ہو گیا, ان کے جو پیسے گرنے والے تھے, سب بیڑا غرق ہونے والا تھا, وہ بچا ہو گیا. اچھا توصیف صاحب یہ کہیے گا کہ جس طرح پاکستان کے اوپر ایک دباؤ تھا تمام تر جو دوسرے بورڈز تھے ان کا بھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اور آئی سی سی کا بھی ایک دباؤ تھا کہ کچھ بھی آئی سی سی فیصلہ کر سکتا ہے, تو تمام تر اس جو دباؤ کے باوجود پاکستان اپنے موقف پر ڈٹا رہا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے پاکستان کا کرکٹ کے اندر خود مختاری کی ایک علامت تھا جو کہ پاکستان نے ثابت کر دیا؟ بالکل, اور ہم کسی سے دبے ہوئے نہیں بیٹھے تھے, ہمیں نتائج کا بھی پتا تھا, ایسی بات نہیں کہ نتائج کا ہمیں نہیں پتا تھا, لیکن جو پوائنٹ ہمارے ہاتھ میں تھا, اور ظاہر ہے
हम तो बाहर बैठे हैं, लेकिन हमें समझ है इतनी कि जो पॉइंट हमारे हाथ में था हमने उसको कैश किया, और कैश इसलिए नहीं किया, हमने सही उसमें किया इसलिए कि आपने जो, सॉरी टू से मैं अल्फाज नहीं करूंगा अब इस्तेमाल ऐसा, कि आपने जो दुनिया क्रिकेट में जो उधम मचाया हुआ था वो उन खाक में मिल गया आपका सारा। और हमारा अपने लिए, बार बार मैं कह रहा हूं कि हमारे अपने लिए इतना नहीं था जितना हम दूसरी कंट्रीज के लिए लड़े हैं, यानी कि हम बांग्लादेश के लिए। बाद में वो ले आओ आपके मुसलमान और ये वो सब बात, और ये तो गलत बात है ना। आप किसी मुल्क में खेलने जा रहे हैं और उसके लोगों को कह रहे हैं मार देंगे, मर जाएंगे। कैसी गवर्नमेंट है आपकी, कैसे आपके लोग हैं? फिर आप अपने लोगों को क्या समझा रहे हैं, आप अपने प्लेयरों को क्या बता रहे हैं कि हाथ ना मिलाओ, ये ना करो। भाई हमें हाथ वाथ की इतनी, और मेरा ख्याल है एक क्लॉज ये भी शायद रखने लगे हैं कि पता नहीं कि हाथ मिलाना या कुछ ऐसा, सुन रहा था। क्या जरूरत है हाथ वाथ की? ठीक है जी, आए वैसे हम तो बड़े खुले दिल से खेल रहे हैं, और आप आए हमसे और शेक हैंड करें, नहीं करें आपकी मर्जी है, लेकिन ये खेल के उसूल के खिलाफ है। ये मोहब्बत वाली चीजें हैं, ये हर जगह होती हैं। खैर आपने तो हमें कभी मोहब्बत देने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए कि आपने तो हमेशा हमें बर्बादी की तरफ ले जाने की कोशिश की है। लेकिन हम फिर ऑनेस्टली कोई और मुल्क होता तो शायद आई थिंक, मेरा ख्याल है कि इतना स्टैंड कभी भी नहीं ले सकता था। हम फिर आपके पास आए हैं एक लिहाज से, आप जो अच्छे लोग हमारे पास आन के खड़े हुए हैं, दूसरी कंट्रीज के लोग हमारे पास आन के खड़े हुए हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, सबकी, दुनिया की सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उन लोगों को सोचना पड़ेगा जो टीमें हैं, यार ये हर दफा ये हरकतें जब होती हैं तो हम क्यों नहीं, हम भी इसमें शामिल हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है वो 14 और 2 का जो हिसाब है नेक्स्ट टाइम में ये भी आगे काफी बढ़ जाएगा। अल्लाह ना करे कि आप कोई ऐसी चीज हो, सारी चीजें जो है ठीक हो जाए, और इंशाअल्लाह ताला हम क्रिकेट में भी ऊपर जाएंगे। अच्छा तौसीफ साहब, आपने देखा कोई माजी में इस तरह की नज़ीर मिलती है जिस तरह का इस दफा पाकिस्तान ने स्टैंस लिया और अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये भी आप कह सकते हैं कि उस वक्त शायद इतना मीडिया नहीं था, लेकिन मीडिया था जरूर। हम इंडिया में भी जाके एक सीरीज जीते हैं, यानी पहली दफा हम टेस्ट सीरीज भी जीते, और 6 मैचों की वनडे सीरीज थी उस वक्त। तो नहीं था। तौसीफ साहब साथ ही रहिएगा, सवेरा पाशा आप भी साथ ही रहिएगा। हमें बांग्लादेशी सहाफ़ी भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कमर साहब, थैंक्स गिविंग फॉर टाइम अस, और आई वांट टू से दैट व्हाट डू यू से अबाउट ऑल दीज डेवलपमेंट्स during the negotiations? Pakistan made it clear that if Bangladesh agrees, we are also willing. What do you say about this? Thank you very much. Actually, Pakistan did after India played a very negative role, and unfortunately ICC being the legal authority of cricket world was so much influenced by Indian pressure, and due to Indian monopoly pressure, Bangladesh was excluded from this big tournament, and Bangladeshi people were so much disheartened, and Pakistan stood by Bangladesh at that moment. Actually, I think that it's not that Pakistan supported Bangladesh, but Pakistan supported justice, and Pakistan did a great move to show ICC that they should work independently. They should avoid monopoly controlling of India for the sake of cricket. Millions of cricket fans across the whole world will lose interest to cricket if ICC failed to work independently, and ICC fails to get out from the monopoly controlling, indecent controlling of India. So this move of Pakistan is a great move, and I think that Bangladeshi millions of cricket fans, they very cordially accepted this move of Pakistan, and Bangladeshi cricket fans thinks that Pakistan, Bangladesh should also work together this way, so that there is a correction in ICC, because ICC is very much partial, and ICC is very much blind in most cases regarding Indian issue, and India should not try to continuously control ICC in a very indecent way, and Indian monopoly controlling should be stopped.
Mr. Qamar, Pakistan has told the ICC that no fines or financial or administrative sanctions should be imposed on the Bangladesh Cricket Board. What do you say about this Pakistani move? Yes, it's very fantastic, and even I think that Bangladeshi people even didn't imagine that such a statement or such demand may be raised from Pakistan side. It's very fantastic and even out of imagination. But this very important and this bold step of Pakistan really very appreciable, and this is important for cricket world. Otherwise, even you see that people across the whole world, millions of people have already lost their interest to watch the World Cup, from where Bangladesh have been excluded, and this should be stopped. And this Pakistani bold step is really appreciable, and I think that people across the world also understand that Pakistan did it not only for Bangladesh but to protect this cricket that is a part of entertainment, and that is a part of sports culture for billions of people actually. So this is very much important, and really it's appreciable. Mr. Qamar, we have sports anchor person Savera Pasha in our panels. She wants to ask some questions from you. Ms. Savera, over to you. Hi, Qamar. First of all, congratulations for this win. This win of Pakistan Cricket Board and Bangladesh Cricket Board against the injustice that was happening during this every chaos that happened. But do you think that this step that was taken, and now that the results are in favor of us, do you think that Asian Cricket Council would also benefit from that? Because the kind of monopoly that was being played, Pakistan Cricket Board and Bangladesh Cricket Board, they have just joined together to fight the bullies of this region. Actually, it's very difficult, and even just think that who are the sports reporter and regularly cover, they also understand that there was almost a perception among the people that ICC always works in favor of India, and India like a super boss in this regard. But this trend has been weakened, at least by the move of Pakistan, and of course this will be an instance before the whole world that nothing monopoly can be continued in this civilized world, and sports that should be always out of politics, that should always be very open, very frank, because this is entertainment, this is not politics. But what India did always mix up politics with games, and that was very third class politics, and Bangladesh first very boldly. Actually, it was possible for even Bangladesh, because Bangladesh is now run by an interim government, non-political government, and you know that the past regime was very much loyal to India and considered to be a loyal puppet of India. Now Bangladesh first started, and very positively Pakistan supported it, and even Bangladeshi people didn't imagine that such boldly Pakistan supported. So this is a first step, I think, against monopoly, and it will set an example. So other countries who are the members of ICC, they will also be inspired to speak boldly, and it will be a very good step, I think, or a good starting to correct the ICC and to correct the cricket world, and that will be a very historic movement of Pakistan. And I think, of course, it will play a very vital role in next or coming days in cricket world. Okay, Mr. Qamar, Bangladeshi journalist with us. Thank you for giving time. और अब आपको बताएं नाजरीन कि पाकिस्तान की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है और पाकिस्तान ने अपनी टीम को भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाज़त दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से ये इजाज़त दी गई है कि पाकिस्तानी टीम अब 15 फरवरी को खेल सकती है मैच, और पाकिस्तान अब 15 फरवरी को भारत के साथ कोलंबो के अंदर T20 वर्ल्ड कप का मैच खेलेगा। हमारे साथ स्पोर्ट्स एंकर पर्सन सवेरा पाशा और साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद भी मौजूद थे और अपना तजिया दे रहे थे।